Good morning, friends. A very warm welcome to the ISUB, guys. Let's start the session. Let's see what's there for us in today's newspaper. So, again, the wisdom of Dalai Lama. Now, he's saying that to conquer oneself is the greatest victory, then to conquer thousands in a battle. अपने ऊपर जीत पाना बहुत ज़्यादा एक बड़ी अचीवमेंट होती है. When you have to fight yourself, you have to put in your maximum effort. सबसे ज़्यादा एनर्जी आपका एफर्ट लगेगा जब आप अपने आप से लड़ रहे होते हो. एंड दिस इज व्हाट दलाई लामा इज सेइंग दैट कंसीडर इट टू बी द ग्रेटेस्ट विक्ट्री बिकॉज यू विल रिक्वायर मल्टीपल क्वालिटीज टू फाइट योरसेल्फ. दूसरों से तो हम लड़ सकते हैं बाहुबल से, बुद्धि से, बट व्हेन यू टॉक अबाउट फाइटिंग योरसेल्फ देयर आर पर्टिकुलर क्वालिटीज दैट आर रिक्वायर्ड इन योर. कौन से हैं देखिए. यू शुड बी इमोशनल इंटेलिजेंट. इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए आपके अंदर. वाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस, इट इज नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग अबाउट अदर्स. इट इज नॉट जस्ट अबाउट ये जानना कि दूसरे कैसा सोच रहे हैं, दूसरे कैसा जो है अपने एक्शंस को लेके आ रहे हैं, उनको बिहेवियर को आप स्टडी करते हो. इट इज बियॉन्ड दैट. दूसरों को स्टडी करना ठीक है, आप सामने वाले को ऑब्जर्व करोगे, उसके बाद आप अपना एक्शंस बिहेवियर जो है वो आगे लेके जाओगे. बट before that as well, you should know yourself. आप अपने आप को भी जानिए. This is also important part of emotional intelligence. You should be knowing कौन सी आपकी weaknesses है, कहाँ पे जो है आप fall करने के chances रहते हैं आपके. Now take this example. If someone is short tempered, गुस्सा ज़्यादा आता है उसे, and that person is there in police, और he is posted in some disturbed area. कुछ disturbed area में posted है जहाँ पे लोग पत्थर फेंक रहे हैं. Now will you want that person to be stationed there, जो कि trigger happy हो जाए और firing order कर दे? You have to deal with that situation with wisdom. शांति से, आराम से उसे संभालना पड़ता है, because these issues are very sensitive. So we don't want that type of person to be in a place who is trigger happy. ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहिए. So considering this particular part, knowing yourself, that is a component of emotional intelligence. This quality we should have. जब आप emotionally intelligent हो जाओगे, not only you will be able to control yourself, you will be winning yourself. आप अपने desires को control कर पाओगे by portraying the best, you can say, behavior. You will be able to win others as well. दूसरों को भी आप जीत पाओगे. Because people will be mesmerized by your behavior. You will be exceptional leader. अगर आपको लीडर बनना है और एक्सेप्शनल बनना है तो these qualities are required. पूरी टीम को साथ लेके आगे चलना कहाँ से होगा? इमोशनल इंटेलिजेंस. अगर आप अपनी ग्रीड, अपनी डिजायर्स को आगे रखोगे, you won't be able to take the team along. पूरी टीम को आगे नहीं ले जा पाओगे. So this quality we need to, you can say, possess if we want any leadership role. आप UPSC क्लियर करना चाहते हैं, आप IAS बनना चाहते हैं, अगेन यू हैव टू हैव दैट सेल्फ कंट्रोल, बिकॉज यू विल बी होल्डिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल. जनता का पैसा वो आपके डिस्पोजल पे रहेगा. आपके एक साइन से करोड़ों रुपए वो निकलेंगे. सो यू हैव टू होल्ड योर डिजायर. देयर विल बी टेम्पटेशंस. लोग आएंगे, आपको ऑफर करेंगे चीजें, वो टेम्पटेशन है इस जॉब के अंदर. बट इफ यू हैव कंट्रोल ओवर सेल्फ, इफ यू आर विनिंग योर सेल्फ, you will be able to deal with those temptations and you will be focused on the development of the people. This is what this message is for us. आगे बढ़ते हैं. So आज की अखबार थोड़ी लेंदी होने वाली है. Lengthy in the sense, like here there is a space for 10 topics, but in these slides we are including 11. Okay, total 11 के अराउंड हमने टॉपिक इसमें डाले हैं. अब there was, like, these topics are quite important. So we will be discussing these things in detail and let's see. So शिव सेना dispute को लेके बात है यहाँ पे. Okay, like they are going to contest it in Supreme Court. कोर्ट में वो जाएंगे against this particular decision of Election Commission. See, when you talk about, you can say, matter related to political parties, in the sense their registration, जहां मामला रजिस्ट्रेशन का हो, जहां मामला
एक तरीके से सिंबल्स अलॉटमेंट का हो, दिस टास्क इज प्राइमरीली डन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. एंड अदर मेजर पॉइंट इज दिस, ठीक है, ईसीआई इन चीजों को तो डील करता ही है, साथ साथ इफ देर इज एनी डिस्प्यूट related to these particular matters, those disputes are also settled by Election Commission of India. Now in this case what happened, certain faction of Shiv Sena, they departed, अलग हुए वो, और वो जाके उन्होंने कहा कि हम असली शिव सेना है, हम सही मायने में शिव सेना है. सो उद्धव ठाकरे, नाउ ही इज ब्लेमिंग दैट इलेक्शन कमीशन इज बायस्ड. इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, क्यों बायस्ड है इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन स्टेटेड दैट वी आर फॉलोइंग अ मेजोरिटी रूल कि भाई 55 एमएलए शिवसेना हैड, 55 एमएलए इनके इलेक्ट होके आए थे, आउट ऑफ दैट 76% दे आर विद शिंदे, द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र. कि 76% जो है वो शिंदे के साथ हैं, शिंदे जी के साथ हैं. And in this way, there lies the real Shiv Sena, and this is what Election Commission concluded. So this was a dispute. Now majority के हिसाब से चलना, जो लोग elect होके आए थे, आपने उनको बोला कि आप वोट कीजिए, based on that you took that decision, it is fine. इसके अंदर कोई कमी मुझे नहीं नजर आती. But right now these things are also contested in court. कोर्ट के अंदर ये चीज contest हो रही है. कोर्ट विल लुक इनटू दिस, बट आई डाउट कोर्ट कैन गो बियॉन्ड दिस. मुझे सीरियसली डाउट लगता है कि कोर्ट इसके अलावा भी कुछ और यहाँ पे जजमेंट देगा. इट इज गोइंग टू बी द सेम, वही जजमेंट रहने वाला है यहाँ पे. ओके, एंड थिंग्स आर गोइंग टू बी सेम व्हाट दे आर राइट नाउ. सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. नाउ वी आर गोइंग टू गेट समथिंग रिलेटेड टू प्रीलिम्स. तो प्रीलिम्स रिलेटेड बात करते हैं कि नेशनल पार्टी कैसे डिक्लेयर होती है. नेशनल पार्टी, if it is securing at least 6% of the valid votes in an assembly or Lok Sabha general election in any 4 or more states and won at least 4 seats in Lok Sabha, then it is going to be a national party. 6% valid vote, या तो 4 से ज्यादा स्टेट के अंदर, लोकसभा जनरल असेंबली के अंदर, और आपकी 4 सीट भी आनी चाहिए, तब आप नेशनल पार्टी आप बन सकते हैं. सेकेंड क्राइटेरिया इज दिस, इफ अ पार्टी विंस 2% ऑफ द सीट्स इन लोकसभा एंड दीज कैंडिडेट्स आर इलेक्टेड फ्रॉम 3 स्टेट्स. 2% सीट आ गई इनके पास, 2% तो बहुत बड़ा नंबर होता है, अच्छा खासा बड़ा नंबर है. तो 2% सीट आ गई एंड दीज कैंडिडेट्स आर फ्रॉम 3 डिफरेंट स्टेट्स, देन दे विल गेट दिस पर्टिकुलर स्टेटस ऑफ नेशनल पार्टी. अब ये फाइट क्यों है, क्यों ये नेशनल पार्टी बनना चाहते हैं? सी, यू गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स व्हेन यू आर, यू कैन से देयर एज अ नेशनल पार्टी. बेनिफिट्स इन द सेंस, आपको ऑल इंडिया रेडियो पे ज़्यादा टाइम मिलता है, एयर टाइम मिलता है, आप आके जो है आप अपने स्टार जो प्रचारक होते हैं, देखिए यू कैन हैव मोर नंबर ऑफ, यू कैन से स्टार प्रचारक्स. So those type of systems are facilitated if you have the status of national party. So this is there, and there is this additional criteria that if a party is recognized as a state party in 4 states, then it will get the status of national party. Now Aam Aadmi Party recently it was recognized as national party based on this criteria कि भी ये state party है 4 से ज़्यादा states के अंदर, then this is the case for a national party. Because of that reason उसको national party बना देते हैं. Clear है? So this is the point here. Now please have a look over this particular question. एक बार ये question को जरा देखिए. It says that consider the following statements. The Election Commission of India is a 5-member body. Is it? नहीं, 5 member तो बिल्कुल भी नहीं है, हटाओ इसे. Second statement, it is saying Ministry of Home Affairs decides the election schedule. बिल्कुल भी नहीं, Election Commission decide करता है. Now देखिए, अगर आप सिर्फ 2 ही ऑप्शन एलिमिनेट करें तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है. सेकंड वाला है जिसमें फर्स्ट वाला है जिसमें एलिमिनेटेड, एंड यू विल बी जस्ट लेफ्ट विद 1. ओके, सो एज आई टोल्ड यू अबाउट दिस थिंग, इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व्स द डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू स्लिप्स एंड यू कैन से स्प्लिट्स एंड मर्जर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज. सो दिस इज हाउ इट इज राइट. ठीक है ना?
अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ आपको। इलेक्शन कमीशन पार्टीज को रजिस्टर तो कर सकता है, लेकिन डी रजिस्टर करने की पावर नहीं दी है। तो ये एक फ्लॉ है सिस्टम के अंदर, तभी इलेक्शन कमीशन के पास कोई पावर नहीं होती है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज लिंकिंग ऑफ पेमेंट सिस्टम। ओके, सो हमारा जो इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई है, it is being linked with Singapore's PayNow. So in Singapore they have PayNow, in India we have UPI, and they are being linked. So this idea is that it is going to facilitate cross-border in the sense international transactions Singapore और India के बीच में। अब इनके इंटरफेस लिंक हो गए हैं। It will further reduce the transaction cost. This is what you can say, this is the global thing now. For सिंगापुर वी आर साइनिंग दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट। अभी तो शुरुआत है, सिर्फ सिंगापुर से आप शुरू कर रहे हो। यू आर गोइंग टू हैव दिस अरेंजमेंट विद मल्टीपल कंट्रीज, जस्ट वेट एंड वॉच। ये जो डिजिटल इकोनॉमी है ना, द मेजर यू कैन से एडवांटेज दैट दीज डिजिटल टूल्स हैव, दैट इंटीग्रेशन इज इजी। अगर आप वाकई ही इंटीग्रेट करना चाहो, सो इट इज क्वाइट इजी, टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट्स दैट। एंड इफ वी आर इंटीग्रेटिंग आर यू कैन से पेमेंट सिस्टम विद द पेमेंट सिस्टम दैट इज देयर इन सिंगापुर, उससे क्या होगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी, बिजनेस एक्टिविटी में बेनिफिट होगा। नॉट ओनली दैट, पीपल जो टूरिस्ट जा रहा है वहाँ पे, टूरिज्म करने के लिए जा रहा है, दे विल हैव मेजर एडवांटेज इन दिस। सो इट्स अ रियली गुड मूव दैट वी आर डूइंग दिस। ओके, आपको एक चीज याद रखनी है, विद सिंगापुर इज द फर्स्ट कंट्री विद विच वी आर हैविंग क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन पेमेंट फैसिलिटी। ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर you can say prelims. Singapore is the first country जिसके साथ हम ये arrangement लेके आ रहे हैं, and this is quite important for your prelims. Okay, अब इसके अलावा there are students who are preparing for state services, अगर उसके लिए भी कोई आप prepare कर रहे हो, from that perspective as well this information is important. Why I am saying this, देखो पहली बात तो UPSC ने UPI के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। So this was the question that they asked. The question was around this thing, which one of the following is most likely consequence of implementing UPI। भी UPI आने के बाद most likely, देखिए ये सब भी हो सकते हैं, लेकिन the question is most likely, क्लियर है? अच्छा, UPI आ गया, क्या FDI फ्लो ड्रास्टिकली इंक्रीज होगा? भाई क्यों इंक्रीज होगा, जबरदस्ती इंक्रीज होगा। और UPI के ऊपर तो हमने लिमिट भी लगा रखी है, 60,000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन नहीं होगा, या 50,000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन नहीं होगा। इट वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक, बैंक टू बैंक वेरी करता है। कुछ बैंक बोलते हैं कि आप करो यूपीआई ट्रांजैक्शन, कुछ ने लिमिट लगा रखी। तो क्या ये हजारों के अंदर लिमिट लगी होगी तो एफडीआई आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, इसको एलिमिनेट करो। देन डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडीज टू पुअर पीपल विल बिकम वेरी इफेक्टिव। अब बात यहां पे आती है इफेक्टिव को लेके। भाई सब्सिडी आपने दी, इफेक्टिवनेस डिपेंड्स अपॉन द यूज, उसका इस्तेमाल किस चीज पे हो रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है ना। गवर्नमेंट ने पैसा रिलीज कर दिया, पैसा अकाउंट में आ गया। अब दैट मनी, इफ समवन इज यूजिंग दैट मनी टू बाय लिकर, दारू खरीदने के लिए अगर उस पैसे का इस्तेमाल होगा तो वो इफेक्टिवनेस थोड़ी ना है, इट इज नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव। सो दिस स्टेटमेंट, दिस जनरलाइज स्टेटमेंट, इट अपीयर्स टू बी रॉन्ग, ये गलत हो गई यहां पे। अब दूसरी चीज देखिए, मेन मुद्दा अटकेगा ए और बी में। सेकेंड स्टेटमेंट इट इज सेइंग डिजिटल करेंसी विल टोटली रिप्लेस द फिजिकल करेंसी इन अबाउट 2 डिकेड्स। डिजिटल करेंसी जो है फिजिकल करेंसी को 2 डिकेड में कंप्लीटली रिप्लेस कर देगी। मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, हमारे पास प्लास्टिक मनी पहले से ही है, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रेडिट और डेबिट कार्ड। ओके, ये प्लास्टिक मनी बोलते हैं इसको। क्रेडिट और डेबिट कार्ड तो हमारे पास पहले से ही है भाई, इतने सालों से चल रहा है। क्या लोगों ने कैश यूज करना बंद कर दिया है? नो, सर्टेनली नॉट। सो यू कैन नॉट से विद अश्योरिटी कि 20 साल में एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब कंप्लीटली रिप्लेस हो जाएगा। ये तो ज्योतिष की तरह बात हो गई, ये ऑब्जेक्टिविटी नहीं है इसके अंदर। सो वी कैन नॉट मेक दिस प्रेडिक्शन, and this also statement appears to be wrong. So we are left with just one statement, that is the first one, that is mobile wallets will not be necessary for online payments. This is the way you can do this question here. थोड़ी बहुत रीजनिंग, थोड़ी बहुत कॉमन सेंस, उससे इस सवाल को आप आराम से कर सकते हो। अगर कंफ्यूज भी हो रहे हो तो एलिमिनेट करके आप 1 by 1 यू विल बी एबल टू एलिमिनेट रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस। आगे बढ़ते हैं, देखिए
with reference to the digital payment, consider the following statement. अब भीम के ऊपर आया है. It is saying Bhim app allows user to transfer money to anyone who is having a UPI enabled bank account. बिल्कुल सही बात है. Second statement कह रहा है कि it's a chip pin debit card has 4 factor of authentication. ठीक है, जो हमारा डेबिट कार्ड होता है उसके पास 4 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के होते हैं. Bhim app is having 2 factor of authentication. Now this statement is wrong because Bhim app has 3 factor authentication. 3 फैक्टर होते हैं ऑथेंटिकेशन के. कैसे ये लिंक होगा देखिए. फर्स्ट पॉइंट, यू विल बी लिंकिंग योर मोबाइल. पहली बात तो आपका मोबाइल आप लिंक करोगे योर भीम के साथ. ठीक है जी, ये लिंक हुआ. ये फर्स्ट लेवल का है, इसके लिए भी आपको एक पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा. देन you have to link your bank account with your Bhim. ओके, आपको अपना बैंक अकाउंट भी लिंक करना पड़ेगा, तो बैंकिंग के साथ हो गया ये अरेंजमेंट. नॉट ओनली दैट, बैंक भी लिंक हो गया. तीसरा जो स्टेप है दैट विल बी यू हैव टू जनरेट योर पिन. आपको एक पिन जनरेट करना पड़ेगा. सो इट इज गोइंग टू बी 1, 2 and 3 steps that you have to follow. 3 factor authentication. That's why this statement is wrong. So A is the right answer. Okay, so this is how we are going to have this arrangement. 3 factor हमारा होगा authentication का. Now let's move to the next topic, that is your news related to vulture. Okay, so basically it is talking about that there is an area, Wayanad Wildlife Sanctuary. It is contiguous with the Tiger Reserve of Nagarhole, Bandepur and Muddumalai of Tamil Nadu, and in this particular area vultures are found. Okay, ठीक है, ये सवाल आ गया vulture से related information. So this is the map that we have here. और ये सारे के सारा जो protected area ये एकदम एक साथ आता है. देखिए, so इधर से देखेंगे we have Brahmagiri Wildlife Sanctuary, ये सब कर्नाटक है. Then you have Rajiv Gandhi National Park. थोड़ा नीचे देखिए Wayanad Wildlife Sanctuary. Here itself Nagarhole National Park is there. इसी बेल्ट के अंदर है आपका नागरहोल नेशनल पार्क. यू हैव बांदीपुर नेशनल पार्क, मुड्डुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क. ओके, सो नागरहोल इज ऑल्सो हियर. सो इन दिस वे दिस इज द कंटिन्यूअस एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया. इतने बड़े लेवल पे है, काफी घना जंगल है. एंड दीज वल्चर स्पीशीज दे आर फाउंड देयर, वो यहाँ पे रहती हैं. बट द पॉइंट इज दिस, look at the present situation related to vultures. So Indian vulture or long-billed vulture, it is a native of India, Pakistan and Nepal. Now it has been listed as critically endangered as per the IUCN Red List. And there is this thing that was happening. Indian vultures, they died of kidney failure caused by diclofenac. Okay, अब ये diclofenac क्या है basically? Now this was anti-inflammatory drug that was given to cattle. कैटल को ये एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स दी जाती थी. अब आपको एक चीज तो इसको लेके क्लियर होगी, दैट वल्चर दे प्रे ऑन डेड बॉडीज को कंज्यूम करते हैं. ठीक है जी. व्हेन दोज कैटल who used to die because of any issue, but over the time उनको आप एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग डिक्लोफेनाक दे रहे हो, एंड देयर कैरेसिस, जो कैरकेसेस हैं उनके अवशेष हैं, उनके अंदर भी वो ड्रग रह जाती है. एंड व्हेन वल्चर्स यूज्ड टू कंज्यूम दोज डेड बॉडीज, दे यूज्ड टू डेवलप किडनी फेलियर बिकॉज वो फूड चेन में आ जाते थे और वो डिक्लोफेनाक भी कंज्यूम कर लेते थे. सो दिस यूज्ड टू हैपन. ये सारी चीजें होती थी वहां पे. क्लियर है? नाउ IUCN स्टेटस की आप हालत देख सकते हो क्या है यहाँ पे. दिस सेंचुरी हार्बर्स नियरली 120 to 150 white rumped vultures and 25 red-headed vultures. Okay, so you should be knowing about these things. This is the present situation. Now already you can say government is running some of the initiatives to preserve them. उनको कंजर्व करने के लिए हमने बहुत इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किए हैं. पंचकुला के अंदर भी यहाँ पे है, ठीक है ना, एक एरिया जहाँ पे वल्चर्स कंजर्वेशन का सेंटर है.
So this is what we need to be knowing it. Okay, आगे बढ़ते हैं. India needs a budget for its young. So this is very much required here. You need to bring in the component related to demography. Demography in the sense age factor को आपको जरूर लेके आना पड़ेगा अपने expenditure के अंदर, otherwise like it won't work for you. Okay, मतलब आप देखिए. So at present, look at the present numbers that we have. Now in 2020, India accounted for 20.6% of the worldwide population between 15 to 29 year group. मतलब 1/5 of the people who are there in 15 to 29 age group, they are in India. Look at the energy that we are having. Look at the prospects. ये लोग इकोनॉमी के अंदर कितना जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बिकॉज रेगुलरली दे विल कंटिन्यूसली बी एडिंग टू द वर्कफोर्स. आपके वर्कफोर्स में तो ये आते ही रहेंगे. सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर अस. ओके, तो मोदी जी ने जो बोला है ना कि दैट बाय 2047 वी आर गोइंग टू बी डेवलप्ड, हम डेवलप्ड हो जाएंगे, ये टारगेट है हमारा. अब वो इस यूथ के बिना पॉसिबल ही नहीं है ना. बट दिस पॉपुलेशन इफ इट इज विदाउट एजुकेशन, अगर इनके पास एजुकेशन नहीं है, if they don't have the health facility, if they are not healthy, how will you facilitate this goal of yours? 2047 में आपको डेवलप्ड होना है और आप इस यूथ को साथ लेके लिए बिना क्या आप डेवलप्ड होने का सोच भी सकते हो? ये आज के डेट की एक समस्या है. एंड द मेजर पॉइंट इज दिस, गवर्नमेंट दे हैव टू स्पेंड मनी, एक्सपेंडिचर हैज टू बी डन ऑन फूड सब्सिडी. फूड के ऊपर पैसा देना पड़ेगा, हेल्थ के ऊपर पैसा देना पड़ेगा, एजुकेशन के ऊपर पैसा देना पड़ेगा. यू हैव टू मेक श्योर दैट द न्यूट्रिशनल हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन इट इज गुड. ये हर हालात में आपको लेके आना पड़ेगा. बिकॉज व्हाट्स द सिचुएशन राइट नाउ, आज के डेट की समस्या ऐसी है कि वी डू हैव अ माल नरिश्ड पॉपुलेशन. बच्चे फेस कर रहे हैं इश्यूज लाइक वेस्टिंग, स्टंटिंग. उनकी बॉडी ग्रो नहीं होती है, बोन स्ट्रक्चर ग्रो नहीं होता, क्योंकि इनिशियली व्हेन इट वाज सपोज्ड टू बी, मतलब प्रोविजन वर सपोज्ड टू बी मेड फॉर क्वालिटी फूड, वो मिसिंग हो जाता है यहाँ पे ड्यू टू अफोर्डेबिलिटी फैक्टर. So we cannot undermine these assistance that the government is providing. किसी भी हालात में ये तो आप भूल ही नहीं सकते कि सोशल सेक्टर आज की डेट में हमें संभालना पड़ेगा अगर हमें फ्यूचर को अच्छा बनाना है. क्लियर है? सोशल सेक्टर स्पेंडिंग हैव टू बी कैरिड आउट बाय अस इफ वी वांट फ्यूचर प्रिपेयर्ड पॉपुलेशन. भविष्य के अंदर किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती है, वी नेवर नो. सो यू नीड टू हैव that population who are equipped, who are skilled, जिनके अंदर skill हो, जो educated हो. We need those type of individuals who are healthy, who can contribute to the economy here. Now let's look into the history. History में एक बार देखते हैं. देखिए, मैंने पहले भी ये एग्जाम्पल बोला, मैं बार बार बोलता हूं ये एग्जाम्पल. हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान was in a वेरी बैड स्टेट. बम फटा था वहां पे, क्लियर है? बॉम्ब ब्लास्ट, न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था हिरोशिमा नागासाकी. सो जापान वाज नॉट इन अ गुड शेप. whatever difficulty that country was facing, it was able to move out of that state primarily with the reason that people were hardworking. Not only that, they were skilled, they were educated. Japanese education system is still considered to be one of the best in the world. They do provide quality education which focuses on the vocational skills. It is not just about the knowledge that you possess. Along with that, you need to have the requisite vocational skills which are going to help you throughout the life. Market ready बनाएंगे वो skills आपको. The same focus we need to have at present. We have to create such an ecosystem where youth in this country, they are healthy and they are market ready. They do have the productivity to contribute to the economic development of the nation. ये कैपेबिलिटी आपको उनमें डालनी पड़ेगी, ये स्किल इम्बाइब करना पड़ेगा. क्लियर है?
हमारी विजन भी होती है, हम प्रोग्राम लेके आते हैं स्किल इंडिया विजन, स्किल इंडिया मिशन। नाउ लाइक अदर प्रोग्राम्स, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया कि इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वी आर क्वाइट पुअर व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन। हम आइडियाज बहुत अच्छे लेके आते हैं लेकिन कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में खराब हो जाता है सिस्टम। So this is how it is, but right now there are few things that are highlighted, that the present government, it has reduced the subsidy, the money that it was, you can say, putting in on social sectors. तो हो क्या रहा है, हमने यहाँ पे फूड सब्सिडी अपनी कम कर दी है, यहाँ पे फर्टिलाइजर सब्सिडी भी कम कर दी है, MG नरेगा के भी बजट कट आ गया है, क्लियर है। सो दिस इज हाउ वी आर, यू कैन से, रिड्यूसिंग द एक्सपेंडिचर। अब देखिए ये सिर्फ बजट के अंदर ऐसा अरेंजमेंट आया है, if more money will be required, government will pump in money। अगर ज्यादा चाहिए होगा पैसा तो सरकार देगी, देखना आप, क्लियर है। सो राइट नाउ दीज आर द थिंग्स दैट आर देयर एंड इट्स अ सीरियस थिंग, बिकॉज not carrying out expenditure on these areas, it means that you are going for budget cut, it means that you are not considering them to be your priority। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको इस चीज के ऊपर फोकस जरूर करना है। You have to carry out expenditure on these areas, without that you cannot take your country forward, clear है। अब देखिए यहाँ पे सोशल सेक्टर के अंदर एक्सपेंडिचर कट हो गया और ये ऐसा बोल रहे हैं कि इफ वी कीप ऑन डूइंग दैट इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट आवर लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। सो सिंपल सा गेम है प्रोडक्टिविटी का, क्लियर है। सो ओनली 9.8% ऑफ इंडियाज वर्कर्स दे आर इन रेगुलर जॉब्स एट प्रेजेंट हु हैव द सोशल सिक्योरिटी। मतलब मेजरली जो आपकी वर्कफोर्स है, नियरली 90% दे आर विदाउट सोशल सिक्योरिटी, उनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। दे आर, यू कैन से, क्वाइट वल्नरेबल, वो बहुत वल्नरेबल है इन चीज़ों को लेके। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग हियर एंड लाइक वी हैव टू मेक श्योर दैट द सोशल असिस्टेंस दैट द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग, इट शुड बी देयर एट देयर डिस्पोजल, ओके। अदरवाइज वो किसके पास जाएंगे, दे आर डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट। Then you can say MG Narega. Now MG Narega specifically it helped us a lot during the COVID time. आप वो याद करते होंगे when migrants, you can say workers, they were migrating from urban center to the rural areas, किस तरीके से वो पैदल चलते हुए जा रहे थे। So that was the case here। वो मतलब आप समझिए, that was the case, clear, it was a major case। अब आप एक चीज देखिए, under investment in education and health will undercut India's chance in a global economy that is increasingly dominated by knowledge। आप उनको एजुकेट नहीं कर रहे, ये 21st century है। At present we are living in an era where knowledge economy is flourishing, knowledge economy सबसे ऊपर जा रही है, क्लियर। ये इंपॉर्टेंट है, ये रास्ता है आपको आगे लेके जाने का, ये रास्ता है आपको बढ़ाने का। सो दिस इज वेरी क्रिटिकल हियर। आपको नॉलेज इकोनॉमी पे फोकस करना होगा। यू हैव टू प्रोवाइड पीपल विद एजुकेशन। इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग, थिंग्स विल नॉट वर्क फॉर यू। दिस इज द फ्यूचर। बिना एजुकेशन के लिए पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं सर्विस सेक्टर की, सो we said that service sector is majorly contributing to our GDP। हमारी GDP में सर्विस सेक्टर मेजर कंट्रीब्यूटर है। That is primarily because we are working on knowledge based system। और कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर is knowledge based। We cannot run away from this requirement। You have to provide people with skill, with knowledge, with education, not only just the primary education। भाई वहां पे बात खत्म नहीं होगी, हायर एजुकेशन भी आपको फैसिलिटेट करनी पड़ेगी। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड एट प्रेजेंट। विदाउट देम यू कैन नॉट सस्टेन। बिना उसके आप सस्टेन नहीं कर सकते हो, क्लियर है। ये बात बहुत जरूरी है समझनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लुक एट द प्रेजेंट सिनेरियो। ये एक केस स्टडी देता है आपको कि भाई देखिए, हमारे यहाँ पे इन 2022 ओनली 2.6% ऑफ नियरली 19 lakh candidates who wrote the national eligibility cum entrance test for medical college admissions। 19 lakh जनता ने ये टेस्ट दिया and only how many of them got the seats? 2.6% लोगों को ही सिर्फ सीट मिली। What about those 97.4%?
जो डॉक्टर नहीं बन पाए. थिंक अबाउट इट. सो हाउ दे विल सस्टेन, वो कैसे सर्वाइव करेंगे? Now every year millions of young women and men in the country, they are denied this opportunity of affordable basic and higher education. जिन लोगों ने एग्जाम क्लियर नहीं किया, पहली बात, एग्जाम क्यों क्लियर नहीं किया? क्योंकि आपने सीट्स लिमिटेड रखी हैं. सीट्स लिमिटेड हैं भाई, नंबर ऑफ सीट्स तो हमें इंक्रीज करनी पड़ेंगी ना, बिकॉज पीपल आर एस्पायरिंग टू बी अ डॉक्टर. एंड द मेजर पॉइंट इज दिस, एक ये चीज है कि पीपल वांट टू बिकम डॉक्टर, they want to become, you can say, they want to join the medical profession. एक ये picture है. Other picture is this, that we have shortage of doctors. दूसरी कहानी कहती है कि यहां पे डॉक्टर की शॉर्टेज है. Size of the population is quite big in India. The patient to doctor ratio is again way above the global standards. जितना WHO बोलता है उससे तो बहुत ज्यादा डॉक्टर, बहुत कम डॉक्टर हैं हमारे यहाँ पे एज कंपेयर टू द पॉपुलेशन रिक्वायरमेंट. सो दिस इज वन पिक्चर हियर. वी हैव टू मेक श्योर दैट मोर, यू कैन से, कॉलेजेस आर देयर, मोर हॉस्पिटल, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस आर देयर, सो दैट वी कैन प्रोड्यूस मोर डॉक्टर्स. जो लोग एस्पिरेशन रख रहे हैं, जो यूथ है, उनकी एस्पिरेशन की भी यहाँ पे रिस्पेक्ट हो जाएगी. ये नंबर जो है it will increase. If you are going to add more seats, ज़्यादा seats होंगी तो ये नंबर बढ़ेगा ना भाई. So this is the major point here that we have to focus. Now, government expenditure on health and education, it can provide a boost to both the supply and the demand fronts. This is what I am talking about. भाई एक तरफ डिमांड है, जनता डॉक्टर बनना चाहती है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट हैज टू जस्ट फैसिलिटेट इट बाय स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन. हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आते हैं, उस पॉलिसी के अंदर वी मेंशन दैट दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, दिस मच परसेंटेज ऑफ जीडीपी वी आर गोइंग टू स्पेंड ऑन एजुकेशन. भाई होता क्यों नहीं है? क्यों नहीं हो रहा है? व्हाट्स द रीजन व्हाई वी आर नॉट सीरियस अबाउट इट? सो दीज आर द मेजर कंसर्न्स दैट वी हैव टू एड्रेस. विदाउट दैट वी कांट टेक योर कंट्री एट दैट लेवल. बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा. डेवलप्ड नेशन 2047 तक नहीं बन पाएंगे. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. The turn of tap of urban bias in rural development. Okay, so this is how things had been in the past. पहली बात देखिए, इंडिया के अंदर एक अजीब सा पैराडॉक्स रहा है. तो पैराडॉक्स कहता था, देखिए पहले नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर हुए, फिर इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर हुई. क्लियर? नाउ दे वर क्वाइट इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधीयन आइडियाज. गांधी जी के ऊपर काफी गांधी जी का असर था. ठीक है जी. Why I am writing this? गांधी जी को क्या चीज पसंद थी? गांधी जी को पसंद था ग्राम स्वराज. That he wanted to have rural led development. Clear? So right from the starting our focus was majorly on the rural area. तो कहीं ना कहीं अर्बन निग्लेक्ट तो हुआ था. इनिशियल डेज के अगर आप देखोगे तो हम कहां पे फोकस कर रहे थे? रूरल के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे थे और अर्बन वहां पे निग्लेक्ट हो रहा था. That was the case. Clear है? अब आप इस चीज को देखिए. When this was happening, over the time, urban centers, now they are the major contributor to your GDP. More than 70% of your GDP is coming from activities that are done in the urban centers. जितना पैसा बन रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वो अर्बन सेंटर यूनिट्स में आ रहा है. जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो पैसा भी इधर आ रहा है. सो दिस इज हाउ थिंग्स हैव बीन. ओके, दिस इज व्हाट द प्रेजेंट सिचुएशन इज. नाउ ओवरऑल व्हाट हैपेंड ओवर द टाइम, पहले तो हम सिर्फ रूरल पे फोकस कर रहे थे, लेकिन जब हमें ये पता लगा कि अर्बन सेंटर्स को डेवलप करना जरूरी है, वी एंडेड अप विद एन अर्बन बायस्ड. थोड़े हम अर्बन बायस हो गए कि ठीक है जी, ये डेवलपमेंट हमें करनी है, अर्बन सेंटर को फोकस करेंगे. एंड व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट, देयर वाज अ मेजर निग्लेक्ट ऑफ रूरल एरियाज. इस पूरी एक्टिविटी में रूरल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं निग्लेक्टेड रह गई. एंड दिस हैड हैपेंड हियर. नाउ दिस इज व्हाट द मेजर पॉइंट इज दिस. बिकॉज ऑफ दिस अर्बन बायसनेस, the divide between urban and rural areas, it is increasing.
जो इनइक्वालिटी है वो इंक्रीज हो रही है. नाउ देयर इज दिस स्पिल ओवर फ्रॉम द मार्केट इन अर्बन एरिया. ये फोकस था कि अर्बन एरिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी एंड इट विल हैव इंपैक्ट इन द नियर बाय एरियाज. सो सपोज दिस इज द अर्बन सेंटर, ये है दिल्ली, तो इसके आसपास वाले जो एरियाज हैं देयर विल बी सम रूरल बेल्ट, कुछ रूरल बेल्ट होगा, ये अर्बन बेल्ट के अंदर एक्टिविटी हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी. So it will have spillover effect, means there will be opportunities of development for the people who are living in the nearby area. ठीक है, आसपास के जो पेरिफेरी में रह रहे हैं लोग, उनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आ जाएगी. Now what about those who are there outside this? जो इस रूरल के साथ लग रहे हैं वो तो निगलेक्ट हो गए ना. बिल्कुल जो एक साथ लगे हुए हैं अर्बन एरियाज के साथ, पेरी अर्बन बोल देते हैं जिनको, वो बेनिफिट उठा रहे हैं इसका. लेकिन दूर के जो गांव हैं उनका क्या? फॉर देम यू नीड टू हैव अ रूरल स्पेसिफिक थॉट प्रोसेस, रूरल स्पेसिफिक प्लान ऑफ डेवलपमेंट. हम उनको अर्बन प्लानिंग के साथ आगे नहीं लेके जा सकते. देयर रिक्वायरमेंट इज कंप्लीटली डिफरेंट, द फैसिलिटीज दैट आर देयर, those things are absolutely different. So we need to be focusing on these points here. इन चीजों को जरूर समझना है हमें, that we have to be considering these things in our mind, in our policy making and other activities. Now जो मैंने बात बोली, rural areas which are far away from the urban core, they suffer because of, you can say, lack of development is there. एक तो ये factor है ही है. Not only that, they don't even come on priority of the policy makers. पॉलिसी मेकर्स की प्रायोरिटी पे भी वो नहीं आते हैं. सो इन दिस वे इट्स अ ट्रबल, इन दिस वे इट्स अ प्रॉब्लम. सो दीज आर सम ऑफ द जेन्युइन कंसर्न्स दैट आर देयर. एंड इफ वी वांट टू रियलाइज द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट विच टॉक्स अबाउट, यू कैन से, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर ऑल, it won't be possible if we are neglecting those rural centers. So we have to give up that urban biasness that we are having. वो तो बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी, बिना उसके आप ये डेवलपमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते. That was the thing. Now let's move to the next editorial, which is talking about new chapter in defense and tech. Okay, so basically it is mentioning about India US. They inaugurated their initiative on, you can say, critical and emerging technologies. So this is how things are going to turn up here. Means it is going to transfer, it is going to facilitate joint production, joint development of technology, and we will end up learning new things from United States. So India US, if you look into, if you compare their abilities, technology की अगर हम compare करेंगे, they are far ahead of us. Okay, be it any area, space की बात कर लो, चाहे आप defense की बात कर लो, they are far ahead of us. Now in this particular case, if we are thinking of developing something like this, an idea where we will be working together, where we will be talking about co-development, co-production. अब बात है कि इस इनिशिएटिव के अंडर वी आर सिलेक्टिंग 6 डिफरेंट एरियाज जहां पे हम को-प्रोडक्शन, को-डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं. सो दे आर लाइक स्ट्रेंथनिंग द इकोसिस्टम, डिफेंस इकोसिस्टम, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, रेजिलिएंट सेमीकंडक्टर सप्लाई, स्पेस, साइंस टेक, मैनेजमेंट टैलेंट, नेक्स्ट जनरेशन टेलीकॉम. So these are the major areas where we are cooperating with each other, and now we are having good equation with US. So you are not cooperating when it comes to technology development. Defense ties, security ties, those things are also there. Okay, हम काफी अच्छे से एक दूसरे के साथ coordinate करते हुए आगे बढ़ रहे हैं. And you can say that our relationship with US, it is complementary to each other. One thing is this: we have the bond of democracy. एक दूसरे के साथ डेमोक्रेसी का बॉन्ड आप लेके चलते हो. इट मीन्स दैट देयर इज एन एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट. ओके, एंड इफ वी टॉक अबाउट द ग्लोबल गोल्स, बोथ कंट्रीज दे आर अलाइनिंग देयर नेशनल इंटरेस्ट. दोनों के नेशनल इंटरेस्ट कहीं ना कहीं अलाइन होते हैं. ओके, एंड हियर दिस इज वन प्लेस वी आर वर्किंग टुगेदर, इसलिए हम साथ में चल रहे हैं. So this is the major thing that is there. Now थोड़ा past में चलते हैं, what things had been in the past. So entire generation of Indian nuclear scientists, they were trained in US, but later on there were developments which were not liked by United States, that we ended up going ahead with our nuclear blast in 1974.
अब ये चीज यूनाइटेड स्टेट्स को पसंद नहीं आई, दैट इंडिया बिकेम न्यूक्लियर एंड दे इम्पोज्ड सैंक्शंस ऑन अस. सो फॉर से somewhere around 30 years India was denied the US technology. US की वो टेक्नोलॉजी जो लेटेस्ट थी, जो क्वालिटी में सोवियत यूनियन यूएसएसआर की टेक्नोलॉजी से बेटर थी, वो हमें डिनाई होती है यहाँ पे. एंड वी हैड नो अदर चॉइस अपार्ट फ्रॉम गेटिंग क्लोजर टू सोवियत यूनियन. हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं थी भाई, आपको अपने कंट्री को मॉडर्न बनाना है, यू हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम वेरेवर यू आर गेटिंग इट. So US was denying that help to us, but we were getting it from the Soviet Union. और हमने आगे बढ़ गए. Okay, that was how things went ahead. Now when you talk about this thing here, these are the developments. So देखिए, Bangladesh war, 1974 nuclear test, these developments led that India ended up closer to USSR. अब देखिए बात क्या हुई है. At that time, before that, US was ready to help us with the development of engine. और आज अगर हम इंडियन फाइटर जेट या 5th जनरेशनल प्लेन बनाना चाहते हैं, या हम फाइटर जेट्स बनाना चाहते हैं, the major impediment, major problem is this: we don't have domestic production of engines. इंडिया के अंदर इंजिन्स का डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं होता है. So earlier US was ready to help us, but because we ended up with nuclear blast, they didn't like it and they were not ready to share their technology with us. These were the developments. Now you just figure it out. ये सब चल रहा था. So Bangladesh war हुआ, ये सब आगे बड़ी बात. Okay, in 1987 US agreed to assist India's light combat aircraft Tejas program. अब ये 20 साल से प्रोग्राम चल रहा था और हमने प्लेन बनाने में बहुत डिले किया मेजर, बिकॉज वी वर नॉट हैविंग दैट कैपेबिलिटी. बट व्हेन वी कैरिड आउट अनदर न्यूक्लियर ब्लास्ट, यूएस वाज अगेन नॉट हैप्पी विद दोज डेवलपमेंट्स. उससे भी यूएस खुश नहीं हुआ. सो दीज वर द मेजर थिंग्स दैट हैड हैपेंड इन द पास्ट. बट राइट नाउ विद दिस इनिशिएटिव वी कैन टॉक अबाउट जॉइंट प्रोडक्शन, जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी. सो दिस इज वन सच अपॉर्चुनिटी फॉर अस, वेयर it can help you in creation of domestic production of these engines. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके साथ the technology, if it is there with you, there on your land, you will end up developing other engines and other technologies associated with this. अभी आप हर चीज के लिए इंपोर्ट डिपेंडेंट हो, दूसरे कंट्री से लेके आना पड़ता है आपको. तेजस ठीक है, we have developed that indigenous aircraft, but engines we are still getting it from US. जनरल इलेक्ट्रिकल्स का उसमें इंजन लग रहा है, वही इंजन आप यहाँ पे भी बनाओगे. द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी लेस, इट विल क्रिएट जॉब्स, it will facilitate, it will train your engineers. So these are the additional benefits that we are going to have with this particular deal. It's a definitely good deal with us. Okay, now when we talk about India-US relationship, in Mains 2019 this was the question, that what introduces friction into ties between India and US. Okay, as US is still unable to find for India a position in its global strategy. देखिए स्ट्रेटजी के अंदर इंडिया की पोजीशन फिक्स्ड है. इंडिया इज अ नॉन नेटो अलाय, क्लियर, नॉन नेटो अलाय है, मेजर डिफेंस पार्टनर है. सो दे हैव बीन, इंडिया हैज बीन गिवन दिस पर्टिकुलर स्टैट्यूटरी स्टेटस. ये यूएस के लॉ के अकॉर्डिंग चलता है सिस्टम. मेजर डिफेंस पार्टनर, दिस इज द इक्वेशन दैट वी आर एंजॉयिंग. वी आर हैविंग strategic ties with each other. Okay, so in this way we are aligning our goals. Yes, differences हैं आज की डेट में भी. रशिया यूक्रेन वॉर, if we talk about it, there are differences majorly in the sense that अब UN के अंदर वोटिंग होती है, क्लियर, इंडिया abstains. इंडिया उस वोटिंग में पार्ट नहीं लेता कभी भी. रशिया के अगेंस्ट अगर जो वोटिंग होगी, इंडिया won't take part in that. So US would like India to take stand that is against Russia, but हम नहीं ले सकते. US wanted that India should not buy S-400 anti-missile system from Russia, लेकिन हमने ये भी खरीदा. US didn't want India to buy oil from Russia, but we went ahead. See, every country is guided by their national interest.
ठीक है ना, सब अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से चलते हैं, तो इसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है. एंड दे डू रियलाइज द पोजीशन ऑफ इंडिया that Russia had been our good friend and we had to maintain that friendship. Not only that, these are the genuine defense and the security interest that India is showing. ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड मामला है. आपको अपने डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग करना है. चाइना के पास भी तो एंटी मिसाइल सिस्टम है, तो यू हैव टू डेवलप दैट एबिलिटी. क्लियर है? सो दिस वाज अ मेजर थिंग हियर. ये एक मेजर पॉइंट है. तो यूएस अब मोर और लेस समझता है हमारी बात. नाउ देयर इज दिस, यू कैन से एक्सप्लेन्ड पेज, Vostro accounts and how they facilitate trade. तो बेसिकली बात क्या है, 20 Russian banks including Rosbank, like different bank names are there, they are opening special rupee Vostro account with partner banks in India. Special rupee Vostro account in partner banks with India. क्लियर है? अब देखिए होता क्या है यहाँ पे. A Vostro account is an account that domestic banks hold for a foreign bank in the former's domestic currency. मतलब सिंपल सी बात है, रशियन बैंक आएंगे और इंडिया के किसी बैंक में, चाहे वो स्टेट बैंक हो या कोई भी बैंक हो, उसके अंदर आके अपना एक अकाउंट बनाएंगे जो रुपी वाला होगा, टू बेसिकली फैसिलिटेट ट्रांजैक्शंस. और रशिया यहां पे क्यों कर रहा है? ऑयल ट्रेड की ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करने. क्लियर है? दिस इज द अरेंजमेंट. अब देखिए इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है. डोमेस्टिक बैंक यूजेस इट टू प्रोवाइड इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विस टू देयर क्लाइंट्स. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मान लो इंडिया का बैंक हो गया, ये हमारा डोमेस्टिक बैंक है, मैं एग्जांपल देके बता रहा हूं. क्लियर? उसका क्लाइंट कौन सा हो गया? रशिया का कोई बैंक हो गया. ठीक है, तो ये रशियन बैंक हो गया. नाउ इन दिस अरेंजमेंट बैंक खुलेगा, मतलब अकाउंट खुलेगा. एसबीआई विल टेक परमिशन फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से यहां परमिशन ली जाएगी. विद दैट परमिशन द ट्रांजैक्शंस आर फैसिलिटेटेड और सारी बिजनेस एक्टिविटी जो है इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट के थ्रू की जाएगी. So this is the working arrangement that we have here. क्लियर है आपको? ठीक है जी, इस तरीके से पूरा ट्रांजैक्शन होगा. डिपॉजिट्स एंड ऑल दोज थिंग्स विल बी लुक्ड इनटू. डॉक्यूमेंट्स, ऑल थिंग्स विल बी लुक्ड इनटू. क्लियर है? तो ये आपके एसबीआई वाले सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अरेंज करा देंगे. तो दिस इज व्हाट द ओवरऑल सिनेरियो दैट वी आर हैविंग. अब देखिए बात क्या है. इकोनॉमिक सर्वे, it had argued that the framework could largely reduce the net demand for foreign exchange. आज की डेट में आप सारे ट्रांजैक्शन के लिए यूएस डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट हो, बट अगर आप ये वोस्ट्रो अकाउंट ट्रेड फैसिलिटेट करते हो तो इंडिया का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रशिया के किसी बैंक के अंदर अपना वोस्ट्रो अकाउंट बना लेगा. इन दिस वे दिस विल बी फैसिलिटेटेड, सो इट विल रिड्यूस योर डिपेंडेंस ऑन डॉलर, बिकॉज यू विल बी कैरिंग आउट योर ट्रांजैक्शन पैरेलली. जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके पैरेलली आप अपना ट्रांजैक्शन कंप्लीट करोगे. फ्रॉम दैट एंगल इट इज एब्सोल्युटली फाइन. क्लियर है? नाउ डोमेस्टिक बैंक वुड देन सीक अप्रूवल फ्रॉम एपेक्स बैंकिंग रेगुलेटर. जैसे मैंने बताया आपको, आरबीआई से भी परमिशन ली जाएगी. अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, द डोमेस्टिक बैंक हैज टू एंश्योर दैट द कोरेस्पोंडेंट बैंक इज नॉट फ्रॉम अ कंट्री मेंशन्ड इन FATF लिस्ट. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जो लिस्ट बनाई है जिसके अंदर रिस्क कंट्रीज हैं, उस कंट्री का वो बैंक नहीं होना चाहिए. दिस इज व्हाट दे हैव टू मेक श्योर, एंड विद दैट अरेंजमेंट दे विल एंड अप फैसिलिटेटिंग सिक्योर्ड ट्रांजैक्शन. क्लियर है? ये पूरा आइडिया है. अब यहां पे एक और चीज बोली जाती है, दैट दिस आइडिया ऑफ वोस्ट्रो अकाउंट इट फैसिलिटेट्स वायर ट्रांसफर्स. अब ये वायर ट्रांसफर क्या होती है? सो बेसिकली देयर इज वन वे ऑफ, यू कैन से, मनी फ्लो, जिसके अंदर कैश एक जगह से दूसरी जगह जाएगा. तो बेसिकली इन दिस अरेंजमेंट देयर इज नो मूवमेंट ऑफ कैश. ऐसा नहीं है कि नोटों की गड्डियां डॉलर और रुपये में इधर से उधर हो रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. क्लियर? नाउ इन दिस वायर ट्रांसफर इट इंक्लूड्स ट्रांजैक्शन विद इन द नेशनल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. एक कंट्री के बैंक से दूसरे बैंक में जाना. सो जो
वोस्ट्रो अकाउंट बनाएगा रशिया का बैंक इंडिया के स्टेट बैंक में या किसी और बैंक में, तो ट्रांजैक्शन हो जाएगा पूरा। क्लियर? इट इज नॉट द फिजिकल मूवमेंट ऑफ मनी दैट इज टेकिंग प्लेस। अ वायर ट्रांसफर डू नॉट इन्वॉल्व एक्चुअल मूवमेंट ऑफ करेंसी, वो बिल्कुल भी नहीं होता है एक्चुअल। सो इट विल बी जस्ट ट्रांसफर ऑफ डिटेल्स that take place and this is the model that we have here. Now आगे बढ़ते हैं। So वोस्ट्रो अकाउंट का हो गया यहाँ पे बात। Now there was this another news related to the El Nino and La Nina phenomena. Okay, तो इसको थोड़ा फोकस करते हैं। देखिए El Nino, these are the anomalies that are there. अभी तक हम इसका एक्सप्लेनेशन नहीं बता पाए हैं कि ये वेदर फिनोमिना होता क्यों है। So basically what happens is that during the El Nino year, this belt, this area of Pacific, it heats up, ये गर्म हो जाता है बहुत ज्यादा। क्लियर है ना? तो अगर हम देखेंगे इट इज द वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। ओके, ये जो है वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका है, एंड बेसिकली इन दैट एरिया इट हीट्स अप। यहां पे सी सरफेस का जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज हो जाता है। एज इट हीट्स अप, सी सरफेस टेम्परेचर इंक्रीजेस, इट एंड्स अप डेवलपिंग अ लो प्रेशर जोन हियर। अब जहां पे लो प्रेशर जोन होगा मतलब वहां पे जबरदस्त बारिश होती है। सो दिस एरिया इज गोइंग टू रिसीव रियली हैवी रेनफॉल, जबरदस्त बारिश। और यहां पे क्या हो जाएगा, दिस एरिया विल एक्सपीरियंस लेस प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, क्योंकि सारा पानी तो उधर बरस जाएगा। यहां पे मॉइस्चर कम हो जाएगा, मॉइस्चर कम होगा, इन दिस एरिया देयर विल बी लेस रेनफॉल। और होता क्या है, इंडिया के कुछ एरिया में ड्रॉट लाइक सिचुएशन विल बी देयर, सूखा पड़ जाएगा यहां पे। दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी, एंड दैट्स व्हाई यू कैन से we experience less rains and it impacts our cropping pattern as well. हमारा cropping pattern भी impact होता है। तो लास्ट टाइम जब अल नीनो ईयर था, आपको अगर ध्यान होगा, महाराष्ट्र के अंदर इट वाज अ मेजर ड्रॉट दैट वाज एक्सपीरियंस्ड। महाराष्ट्र में ड्रॉट होता है और उस टाइम पे फार्मर सुसाइड के केसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। सो इट्स अ वेरी कंसर्न यू कैन से एरिया फॉर अस, वी हैव टू टेक इट क्वाइट सीरियसली। अब ये है अल नीनो, अब दूसरा है ला नीना। अब ला नीना क्या है, इट इज ऑपोजिट ऑफ अल नीनो। अल नीनो में तो ये एरिया गर्म हो रहा था। इन ला नीना व्हाट हैपेंस, द वेस्टर्न पैसिफिक, ये ईस्टर्न पैसिफिक है, ये वेस्टर्न पैसिफिक है। क्लियर? सो वेस्टर्न पैसिफिक एरिया ओशियन, इट एंड्स अप डेवलपिंग द लो प्रेशर, इट हीट्स अप, ये गर्म हो जाता है और यहां पे लो प्रेशर डेवलप होता है। एज देयर इज मोर मॉइस्चर इन दैट एरिया, सो monsoon is going to be really, you can say, very strong. बहुत strong monsoon आता है, बहुत ज्यादा बारिश होती है इंडिया के अंदर। अब देखिए इंडिया में समस्या क्या है, बारिश होगी तो भी प्रॉब्लम है, बारिश नहीं होगी तो भी प्रॉब्लम है। जब ला नीना एरिया आ जाएगा तब इंडिया के अंदर ड्रॉट के केसेस, फ्लड के केसेस इंक्रीज हो जाएंगे, केरल में फ्लड आ जाएगा, ऐसी सिचुएशन बनती है। तो मतलब करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल आए, ऐसे ये है अल नीना ला नीना का जादू। इट इंपैक्ट अस, नो डाउट, मॉनसून जबरदस्त होता है, पानी अच्छा बरसता है यहाँ पे, लेकिन ये इंपैक्ट जरूर है जो देखने को मिलता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। विल मूव टू दिस न्यूज नाउ। होम मिनिस्टर आस्क्ड स्टेट टू रिलीव IPS ऑफिसर्स फॉर सेंट्रल डेपुटेशन। क्लियर है? अब देखिए ये जो डेपुटेशन का गेम होता है आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। वी डू हैव ऑल इंडिया सर्विसेज, इसके अंदर आती हैं आपकी IAS, IPS एंड इंडियन फॉरेस्ट, फॉरेन नहीं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। क्लियर? ये ऑल इंडिया सर्विसेज है। व्हाट इज द फंडा हियर, दैट रिक्रूटमेंट इज डन बाय यूनियन। इनका रिक्रूटमेंट यूनियन करता है, इनका अपॉइंटमेंट यूनियन करता है। ठीक है जी, अपॉइंटमेंट भी यूनियन करेगा, रिक्रूटमेंट भी यूनियन करेगा, बट दे आर मेड टू वर्क अंडर
द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के नीचे ये काम करते हैं, दे आर मेड टू वर्क अंडर स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, एम्प्लॉय हो जाओगे आप सेंटर के, लेकिन आप काम करोगे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। इमीडिएट कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट का होगा, फाइनल कंट्रोल होगा यूनियन का। क्लियर? नाउ व्हाट हैपेंस इज दिस, अब सारे के सारे आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर आपने स्टेट में लगा दिए। व्हाट अबाउट द यूनियन मिनिस्ट्रीज, जो यूनियन डिपार्टमेंट्स हैं, आप उसके अंदर चीजों को कैसे फैसिलिटेट करोगे? वहां पे भी तो आपको ऑफिसर लगाने हैं। आपको होम मिनिस्ट्री है, उसके अंदर भी तो आईपीएस लगाने होंगे। आपकी सीबीआई है, उसके अंदर भी तो आईपीएस लगाने हैं। आपकी एनआईए है, वहां पे भी तो आपको आईपीएस की जरूरत है। हाउ विल यू फैसिलिटेट इट? सो टू डील विद दिस, there is a system that is developed, that is a system of tenurial system. ये होता क्या है देखिए, that these officers they are working with state, ये ऑफिसर स्टेट के साथ काम कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, मतलब दे आर वर्किंग ऑन ग्राउंड, ये ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। अब दे विल गो ऑन डेप्यूटेशन टू यूनियन मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। थोड़े टाइम के लिए ये डेप्यूटेशन पे जाएंगे, एंड इट विल बी डन विद परमिशन इन कंसल्टेशन विद द स्टेट्स। स्टेट गवर्नमेंट से पूछ के परमिशन लेके उनसे लिस्ट मंगवा के कि आपके कौन से ऑफिसर सेंट्रल डेप्यूटेशन पे आना चाहते हैं। दिस इज फैसिलिटेटेड। इसका बेनिफिट दोनों को होता है। वन थिंग इज दिस, व्हेन दे विल बी वर्किंग विद यूनियन, they will bring the ground level knowledge। तो ये ग्राउंड की नॉलेज लेके आते हैं। अदरवाइज यूनियन को क्या पता लगेगा कि स्टेट्स के अंदर जनता क्या डिमांड कर रही है, गवर्नेंस की प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, उनको तो पता ही नहीं लगेगा। सो दे विल ब्रिंग द ग्राउंड लेवल नॉलेज की सिचुएशन क्या है। टेन्योर पूरा करेंगे, डेप्यूटेशन का टाइम होगा से 5 साल या 3 years। आफ्टर दैट दे विल अगेन गो बैक टू ग्राउंड। 5 साल पूरे करके दे विल अगेन गो बैक टू द रिस्पेक्टिव स्टेट। नाउ व्हेन दे विल गो बैक टू द रिस्पेक्टिव स्टेट, दे विल ब्रिंग द एक्सपीरियंस दैट दे आर गोइंग टू हैव वर्किंग विद यूनियन। और यूनियन गवर्नमेंट स्टेट से थोड़ा बेटर परफॉर्म करती है। अगर आप डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज की बात करें, सो दिस इज द ट्रेंड दैट इज क्वाइट विजिबल। दे हैव मोर रिसोर्सेज, they end up performing better than the state government and departments, that's for sure. So in this way they bring that experience of union to the state. So in this way the whole thing is facilitated। लेकिन यहां पे बात यूनियन कह रहा है कि आपके जो ऑफिसर्स ने पहले अप्लाई किया था, इफ दे आर नॉट गोइंग टू ज्वाइन यूनियन, जो भी हम बोल रहे हैं डिपार्टमेंट, अगर वो ज्वाइन नहीं करते तो फिर हम उनको कंप्लीटली बार कर देंगे यूनियन डेप्यूटेशन के लिए। नेक्स्ट टाइम से वो यूनियन डेप्यूटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की डेप्यूटेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज व्हाट द यूनियन इज इंस्ट्रक्टिंग द स्टेट्स। सो दैट्स द ओवरऑल सिनेरियो। इट्स अ रियली गुड, यू कैन से, वे। लेकिन होता क्या है, एक प्रॉब्लम है इस टेन्योरियल सिस्टम में। सो जो ऑफिसर यूनियन में चला गया, वो कभी स्टेट में वापस ही नहीं आना चाहता, क्योंकि आपकी नौकरी लगेगी, दिल्ली ऑफिस होगा आपका, आपके फैमिली वहां पे दिल्ली में रह रही है। they don't want to go back to their respective state. This is the common problem that is visible. So ये एक समस्या है जो दिखती है यहाँ पे कहीं ना कहीं। we need to have a, you can say, streamlined policy for that. ऐसा जरूर होना चाहिए। Now we have this other news that children have the right to protect their genetic data. This is what Supreme Court is saying. अब देखिए होता क्या है, at the present time lot of cases are filed for पैटर्निटी एंड मैटरनिटी टेस्ट। ठीक है, कि पैटर्निटी मैटरनिटी टेस्ट करने के लिए डीएनए सैंपल्स लिए जाते हैं। नाउ जस्ट थिंक अबाउट हाउ बैड इट इज फॉर द चाइल्ड। बच्चे के लिए कितना ये ट्रॉमा जैसा होगा दैट द पुलिस डिपार्टमेंट और द अथॉरिटीज दे आर टेकिंग डीएनए सैंपल ऑफ हिम और हर टू प्रूव दैट हु इज द फादर एंड हु इज मदर। कितना बड़ा मेंटल स्ट्रेस से वो बच्चे जाके गुजरते हैं। सो दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट इज रिकॉग्नाइजिंग दिस,
that it should not be a case in each and everything. This should not be a method that is followed in each and every, you can say, case here. भाई हर केस के अंदर आप पैटर्निटी मैटर्निटी टेस्ट करते रहोगे, this is not the right strategy. So you need to devise a way, because it is going to be a trauma for that child. बच्चे के लिए बहुत बड़ा ट्रोमा है और आपको जरूर इसको बेटर करना है. This is what the court is saying here. Clear है? That we cannot have this just as a norm कि हर बात पे DNA टेस्टिंग हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए. Now Russia to suspend treaties with US. Okay, so primarily it is about the Strategic Arms Reduction Treaty START. Okay, it was signed in 2010 and it is binding verifiable agreement that limit the each sides the number of strategic nuclear warheads. Okay, अब देखिए ये treaty तो एक दूसरे का sign करते हैं, but in reality lot of things are hidden. And no doubt they might have signed this treaty कि भी nuclear warhead जितने हम number हैं उसको control करके रखेंगे, ठीक है. लेकिन both US and Russia, they were investing in, you can say, increasing the speed of the nuclear warhead delivery. जो मिसाइल है आपकी उसकी स्पीड ये इंक्रीज कर रहे हैं ताकि उसको कोई इंटरसेप्ट ना कर पाए, उसकी स्पीड इंक्रीज की जा रही है. So majorly they may have concluded these, you can say, agreements and treaties with each other, but ground reality is different. हकीकत जमीन की थोड़ी अलग होती है. They are still investing for their, you can say, technology development. This is how things are taking place here. Okay, so just excuse me. And right now it's a sad thing if things are deteriorating to this level, because what it will lead to, the arms race excuse me, the arms race will start again, and this is what is not good for humanity. See, this is not that is happening with US, even with China these things are happening here. Okay, so this is the major concern, that you are moving away from the bilateral agreements that you are having. उससे थोड़ा पीछे हट रहे हो तो इसका negative impact जरूर होता है. And definitely we have to be quite serious about it, because they are the major powers at present. Look at the number of weapons that they have. So it's a really, you can say, sad thing that is happening here, and primarily because they don't trust each other over this Ukraine-Russia issue. So this is what we have for today's session. I am concluding the session here. Have a great day, friends. Please do spread the name about this particular session, about the IAS Hub, if we are adding value to your preparation. Not only that, we are announcing multiple, you can say, courses. You can stay connected with us, join our Telegram group for regular updates about the courses that IAS Hub is coming up with. So that's it for the day then. Thank you very much. Have a great day.